Organism and population, part 5th. Mortality. It is defined as death rate of population. आबादी में शरे अमवात. It is a measure of the number of deaths in general or due to specific cause in a particular population in proportion to the size of that population per unit time. एक आबादी की साइज और एक मखसूस वक्त में होने वाली अमवात किसी जनरल कॉज की वजह से या फिर किसी मखसूस कॉज की वजह से उस आबादी की शरे अमवात कहलाती है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेथ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर. mortality rate of 9.5 in a population of 1000 would mean 9.5 deaths per year in the entire population. Types of mortality. There are two types of mortality: absolute mortality and realized mortality. Absolute mortality is defined as number of deaths under ideal conditions, that is, in presence of large amount of resources, that is, food and water, and in absence of the competition between the individuals. Realized mortality is defined as number of deaths when environmental pressure come into play, that is, the deaths occur in less amount of the resources, that is food and water, and there is competition between the individuals for these resources found in less amount. So एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी वो होती है जो एक आइडियल कंडीशन में होती है, जैसे कि उस जगह पर मुनासिब अमाउंट में लाइफ रिसोर्सेस होते हैं, जैसे फूड और वाटर, और जिनके को हासिल करने के लिए इंडिविजुअल्स में किसी तरीके का कंपटीशन नहीं होता. और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी वो अमवात होती हैं जिनमें लाइफ रिसोर्सेस कम होते हैं और उनको हासिल करने के लिए इंडिविजुअल्स के बीच कंपटीशन होता है, और उस वक्त जो अमवात होती हैं उन्हें उसे कहते हैं रियलाइज्ड मोर्टेलिटी. Then there is another characteristic of population is sex ratio. It is measured as ratio of number of individuals of one sex to that of other sex. The males and females in a ratio of 1:1 is generally the most common evolutionary stable strategy, also called as ESS. सेक्स रेशो का मतलब होता है मेल्स और फीमेल्स का तनासुब एक आबादी में, और 1:1 रेशो जो होता है वो कहलाता है इवोल्यूशनरी स्टेबल स्ट्रैटेजी. Then there is another
characteristic of population, that is age distribution and age pyramid. Population is composed of individuals of different age groups. If age distribution is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid. एक आबादी में मुख्तलिफ एज ग्रुप के लोग होते हैं. हर आबादी में 3 डिफरेंट एज ग्रुप होते हैं. पहला ग्रुप होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो 0 से 14 ईयर्स के इंडिविजुअल्स पर मुनहसर होता है. सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, इट इज़ फाउंड बिटवीन 15 to 45 ईयर्स. और तीसरा ग्रुप होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप, इसमें 45 to 85 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल्स इंक्लूड होते हैं. और अगर इसकी अमाउंट के हिसाब से अगर ग्राफ बनाया जाए तो उस ग्राफ को कहते हैं एज पिरामिड. There are 3 pyramids shown in the figure, and these pyramids are prepared with the help of the number of individuals found in 3 different age groups. First pyramid shows expanding population. Second age pyramid shows stable population, and third pyramid shows declining population. Each pyramid consists of 6 stairs or 6 levels. In first pyramid, there is the individuals of pre-reproductive age group at first level. On second and third level, there are the individuals of reproductive group. Then at fourth, fifth and sixth level, there are the individuals of post-reproductive age group. पहला पिरामिड जो है, इसमें पहले लेवल पर प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं जो ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, यानी उनका नंबर ज़्यादा होता है. सबसे ज़्यादा प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल हैं. उससे कम रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल हैं और सबसे कम है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. अगर किसी आबादी में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं तो वो पॉपुलेशन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन होती है, क्योंकि ये आगे प्री रिप्रोडक्टिव ग्रुप में जाते हैं. इस तरीके से यहाँ पर प्री और रिप्रोडक्टिव ग्रुप के इंडिविजुअल ज़्यादा हो जाते हैं और ये जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं तो आबादी बढ़ती है. तो यहाँ पर पिरामिड बताता है एक्सपांडिंग पॉपुलेशन. स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल सेम अमाउंट में होते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप के इंडिविजुअल उनसे कम होते हैं. प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाते हैं और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जब पोस्ट में रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाते हैं तो यहाँ पर नेटलिटी
रेट भी बढ़ता है और आगे जाकर मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ता है। इस तरीके से दोनों इक्वल हो जाते हैं तो यहाँ पर पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। एक्सपांडिंग पॉपुलेशन में नेटलिटी रेट बढ़ता है और मोर्टेलिटी रेट कम होता है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है उस वक्त जब प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स कम होते हैं, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल्स ज़्यादा होते हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल कम अमाउंट में रिप्रोडक्टिव एज में जाते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के इंडिविजुअल पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा जाएंगे। इसलिए यहाँ पर नेटलिटी रेट कम होता है और मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन जो रहती है वो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन होती है। इससे पहले के लेक्चर में आपने पढ़ा था स्पेसिफिक बर्थ रेट। यहाँ पर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। स्पेसिफिक बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ रेसिडेंट live births to women in a specific age group for a specified geographic area। एक स्पेसिफिक एरिया में एक मखसूस एज ग्रुप की औरतें जब में लाइव बर्थ होती है, यानी वो जिंदा बच्चों को जब जन्म देते हैं, तो ये कहलाता है स्पेसिफिक बर्थ रेट।